Hello students and welcome to the channel SNW Physics Classes. If you really understand the concepts taught here, please turn the black thumb blue. That means like the video, share with your friends and subscribe to my channel. Also do not forget to hit the bell icon for the latest update. In this video, I am going to deal few more concepts on the topic motion, which is chapter 1st of class 9th physics. Today we will discuss about these topics. What do we mean by uniform motion? If a body covers equal distance in equal time interval, अगर कोई body equal distance cover करे हर एक time equal एक time interval में, तो उसे हम बोलते हैं uniform motion. For example, if a body covers 5 kilometer in 1 hour, तो इन दोनों के बीच का जो distance है वो 5 kilometer हुआ और ये जो time interval इसको cover करने में लगा that is 1 hour. Similarly, here we can also say that distance covered by the body is 5 kilometer. Here also distance is 5 kilometer, and similarly the distance between 20 and 25 kilometer is also 5 kilometer. What do we see here? That each box have equal time interval that is of 1 hour. यहाँ पे हर एक box में जो time interval है दो place को दो distance को cover करने का that is 1 hour. तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं? Equal distance is covered in equal time interval. So the body is said to be in uniform motion. यहाँ पे हम लोग ग्राफ में भी देख सकते हैं. If a body travels in uniform motion, then it will have a straight line as a graph. ग्राफ में क्या होगा? Uniform motion have a straight line in graph floating. You can write it down and note down as your notes. You can also find my notes on Telegram. Link is in the description box. Non-uniform motion. Similarly, it is just opposite of uniform motion if a body covers non-equal distance in equal interval of time. Non-equal distance, यहाँ पे हम लोग क्या देख सकते हैं? यहाँ पे ये जो boxes हैं जिसमें time hours में दिए हुए हैं, इन दोनों के gaps जो हैं, उनके intervals जो हैं, that is 1 hour each. यहाँ पे हर जगह जो है वो time interval is 1 hour, but the distance varies in each box. हर एक box में distance जो cover कर रहा है वो body वो vary कर रहा है. It means it is covering non-equal distance. ठीक है? यहाँ पे distance कितना cover किया? 8 minus 3, 8 minus 5, that is 3 kilometer. यहाँ पे कितना cover किया? 15 minus 8. And similarly, we can find out that distance covered by the body is not equal. In such case, we will get the curve graph. Okay, curve line on the graph. Here what we see, 5 kilometer cover किया first hour में. फिर उसके बाद वो 8 किलोमीटर कवर किया, तो हम लोग 10 से थोड़ा सा नीचे इस पॉइंट को लिए हुए हैं, so that we can show that it is 8 kilometer in the second hour. Similarly, 15 kilometer in the third hour and 18 kilometer, यहाँ 20 से थोड़ा नीचे ग्राफ हम लोग का आ जाएगा, that is in fourth hour and 25 kilometer in fifth hour. इस कंडीशन में हम लोगों को जो ग्राफ मिला, that is a curve line. So the non-uniform motion have curved line in graph floating. Now what is speed? The distance traveled by a body per unit time. किसी भी unit time में, unit time से हम लोग यहाँ पे क्या समझते हैं? 1 second, okay, 1 minute. Unit means here, unit means 1 and 1 hour. इसमें हम लोग कुछ भी ले लें, यूनिट टाइम में जितना बॉडी कवर करे डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड इट्स स्पीड. ओके, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड इट्स एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड. ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, यहाँ पे जैसा हमारा डेफिनेशन है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड. यहाँ पे हम लोग इस तरह से मैथमेटिकली वी कैन राइट इट, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड स्पीड. अगर हम इस एक्सप्रेशन को सिर्फ याद कर ले, we can remember the definition of the speed, that is distance traveled by the body per unit time. Distance by time is called speed. यहाँ से हम लोग इसको लर्न कर सकते हैं, याद कर सकते हैं. ऐसा कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आप इस कॉन्सेप्ट को समझ कर बहुत आसानी से सभी चीजों को याद करके रख सकते हैं. ओके,
Symbolic, we can write V is equal to S by T, means here S is distance traveled and T is the time traveled by the body and V is speed of that body. यहाँ पे बहुत सारे फिर कन्वर्जन आ जाते हैं. कन्वर्जन में हम लोग एक बार देख लेंगे इसमें कि कन्वर्ट कैसे करेंगे. यहाँ पे here is convert 10 kilometer per hour into meter per second and सेंटीमीटर पर सेकेंड. क्वेश्चन यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है कि अगर किलोमीटर पर आवर में है तो उसे मीटर पर सेकेंड में या सेंटीमीटर पर सेकेंड में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं. देन आई श्योरली टेल यू हाउ वी कैन कन्वर्ट 10 किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकेंड एंड सेंटीमीटर पर सेकेंड. यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 1 मीटर इज इक्वल टू 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. ठीक है. ऑल्सो वी हैव 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर. ठीक है. ये हम लोगों को कन्वर्जन हम लोगों को ऑलरेडी पता है. ऑल्सो वी नो दैट 1 मिनट इक्वल टू 60 seconds, 60 seconds and 1 hour equal to 60 minutes. ये हम लोगों को ऑलरेडी पता है. अब इसे हम कन्वर्ट कैसे करेंगे, लेट अस सी. यहाँ पे अगर हम लोग लिख लें कि वी हैव टू कन्वर्ट 10 किलोमीटर इंटू किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकेंड पहले हम लोग कन्वर्ट करते हैं. तो 10 को हम लोग क्या करेंगे इसमें कि हम लोग इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ओके. विल मल्टीप्लाई इट बाय 1000 एंड वी हैव टू कन्वर्ट आवर इनटू सेकेंड. आवर को हम लोगों को सेकेंड में कन्वर्ट करना है. तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, वी विल डिवाइड इट बाय 60 इंटू 60. विल डिवाइड इट बाय 60 इंटू 60. इसको सॉल्व करने के बाद ये 0 0 ये इससे 0 कैंसिल. वी विल गेट द आंसर डायरेक्टली. आई एम राइटिंग द आंसर, यू कैन सॉल्व इट. ठीक है. इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे तो मेरा आंसर हो जाएगा 25 बाई 9 मीटर पर सेकेंड. 25 बाई 9 मीटर पर सेकेंड. वी कैन राइट इट. यहाँ पे हम लोगों को क्या हो जाएगा, हम लोग 10 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट कर रहे हैं मीटर पर सेकेंड में. देन वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 1000. बिल्कुल बेसिक सा चीज बता रहे हैं. ये आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं, बट बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होती है, इसलिए मुझे ये बताना पड़ रहा है. ओके. और ये आर को मिनट सेकंड में चेंज करने के लिए हम लोग 60 इंटू 60 से डिवाइड करते हैं. ठीक है. अब इसी चीज को मीटर पर सेकेंड है, इसको हम लोगों को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर पर सेकेंड में. ओके. नाउ बहुत आसान है, ये बिल्कुल भी आसान है. हम इसके लिए क्या करेंगे, सिंपल हम लोग इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. 25 इंटू 100, okay, divided by 9. So we will get the answer 277.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड. ठीक है. ये बहुत बेसिक सी चीज थी, ये बताना थोड़ा जरूरी था क्योंकि बहुत बच्चे न्यूमेरिकल्स में इसी में गलती करते हैं. ओके. यू कैन सी हियर स्पीड, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड. अगर आप लोगों ने उसे नोट नहीं किया होगा तो आप उसे पॉज करके नोट डाउन कर लें. ओके. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एवरेज स्पीड. व्हाट इज एवरेज स्पीड? द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर्ड टू द टोटल टाइम टेकन. ठीक है. यहाँ पे हम लोग इसको एक एग्जाम्पल से बहुत इजीली समझ सकते हैं. व्हाट इज एवरेज स्पीड? लेट अस टेक वन कार हियर. लेट अस टेक वन कार. ये मिस्टर बोनी का कार है इसलिए ये इस तरह से बना हुआ है. ओके. पॉइंट ए से जो कार है मिस्टर बोनी की, वो पॉइंट बी तक जा रही है. ठीक है. पॉइंट ए टू बी, द कार इज ट्रेवलिंग द डिस्टेंस ऑफ
5 kilometer. Car is traveling the distance of 5 kilometer in half an hour. In half an hour, the car is traveling the distance of 5 kilometer. Again, from point B to C, it is traveling a distance of 10 kilometer. ठीक है, 10 किलोमीटर के डिस्टेंस को ये कवर कर रही है पॉइंट B to C in 1 hour. Now what happened? We have to find the average speed of that car. तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? We will find the total distance. Total distance find करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? We will add 5 kilometer plus 10 kilometer. So the total distance of car will be 15 kilometer. 15 kilometer. And we will also sum up the time taken by the car. यहाँ पे क्या है? Half an hour plus 1 hour. तो ये मेरा हो जाएगा 3/2 hour. ठीक है, 3/2 hour. So we will get the average speed of car by solving this ratio. Okay, we'll get the average speed of the car by solving this ratio. It means the average speed of car will be 10 kilometer per hour. Okay, so the average speed of car will be 10 kilometer per hour. How? ये कैसे हो गया भाई? तो ये क्या होगा? ये 2 इससे जाकर के ऊपर न्यूमरेटर में इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 को हम लोग यहाँ से कट करके और 3 5 जा 15 एंड फिर जब ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 2 जा 10. सो द एवरेज स्पीड ऑफ द कार विल बी 10 किलोमीटर पर आवर. यहाँ पे हम लोग डेफिनेशन को देख सकते हैं. यहाँ द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर्ड टू द टोटल टाइम टेकन इज नोन एज एवरेज स्पीड ऑफ दैट बॉडी. And mathematically we can write the expression average speed VAV. ये symbol है average speed का. VAV is equal to total distance traveled by total time taken. इसकी definition को हम लोग इस expression से बहुत आसानी से याद कर सकते हैं. इसमें कोई रट्टा मारने वाली चीज नहीं है. We will just remember this expression and we can find out the definition. The ratio of total distance traveled by the total time taken is known as average speed of the body. Next topic is uniform speed. If a body travels equal distance in equal interval of time, equal distance in equal interval of time, no matter how small this time interval is. Time interval कितना छोटा है? 1 second का interval है या 10 second का interval हो, ये इससे मैटर नहीं करता है कि इंटरवल कितना छोटा है. बस यहाँ पे हम लोगों को ये ध्यान में रखना है कि बॉडी शुड ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. ठीक है, तब उस बॉडी को हम बोलेंगे कि दैट बॉडी इज इन यूनिफॉर्म स्पीड. सिमिलरली जस्ट लाइक यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म स्पीड विल आल्सो हैव अ स्ट्रेट लाइन. क्योंकि जैसे जैसे हमारा डिस्टेंस जो है वो बढ़ रहा है, टाइम भी वैसे ही बढ़ रहा है. इट मींस डिस्टेंस जो है वो टाइम के प्रोपोर्शनली बढ़ रहा है. डिस्टेंस इज increasing as the time is increasing. Equal distance is covered in equal time interval. अगर यहाँ पे equal नहीं होगा तो ये जो ग्राफ होगा वो क्या हो जाएगा? हमारा curve line हो जाएगा. Okay. Now the question is, a scooterist covers a distance of 3 kilometer in 5 minutes. एक स्कूटरिस्ट है जो कवर कर रहा है 3 किलोमीटर डिस्टेंस 5 मिनट में. वी हैव टू कैलकुलेट द स्पीड इन सेंटीमीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड एंड किलोमीटर पर आवर. ये बहुत आसान सा है. अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया इसे. आप इसे कन्वर्ट करके आसानी से इसको कर सकते हैं. फिर भी हम लोग एक बार इसको देखेंगे. सो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द स्कूटरिस्ट इज 3 किलोमीटर्स. ओके, वी विल कन्वर्ट इट इनटू मीटर फर्स्ट. ठीक है, आसानी होगा. ऐसे कैलकुलेशन में बहुत इजी होता है. ठीक है, तो इससे हम लोग पहले इसको मीटर में कन्वर्ट करने के बाद फिर हम लोग इसको क्या करेंगे? इसे सेंटीमीटर में, बिकॉज आवर फर्स्ट क्वेश्चन है टू कन्वर्ट इट्स स्पीड इन सेंटीमीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो हमारे पास इतना ये सेंटीमीटर हमें मिल गया. यहाँ पे 3 लाख सेंटीमीटर. ओके, नाउ नेक्स्ट टाइम टेकन बाय स्कूटरिस्ट इज 5 मिनट. मिनट को हम लोग सेकंड में कन्वर्ट करेंगे एंड वी विल इजीली फाइंड द स्पीड ऑफ दैट स्कूटरिस्ट इन सेंटीमीटर पर सेकंड, दैट इज 1000 सेंटीमीटर्स पर सेकंड. ओके, अभी सिमिलरली टू कैलकुलेट द स्पीड इन मीटर पर सेकंड, सबसे पहले हम लोग उसको क्या करेंगे? मीटर में कन्वर्ट करेंगे. द टाइम टेकन बाय द स्कूटरिस्ट इज 5 मीटर इन 5 मिनट्स. सॉरी, 5 minutes.
and we'll convert into second. Now what happened, distance traveled by total time taken is 10 मीटर पर सेकेंड. इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करके इसको आसानी से निकाल सकते हैं. अगर हम लोग मीटर पर सेकेंड में निकाले तो द स्पीड ऑफ द स्कूटरिस्ट इज 10 मीटर पर सेकेंड. एंड फाइनली टू कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय स्कूटरिस्ट इन किलोमीटर पर आवर. अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, सिंपल हम लोग को किलोमीटर में दिया हुआ है बट वहां पे मिनट में दिया हुआ है, तो हम लोग इसको 60 से डिवाइड करके आवर में कन्वर्ट करेंगे एंड देन वी विल फाइंड द speed of the scooterist in kilometer per hour, that is 36 kilometer per hour. Okay, next question is, a train travel a distance of 120 kilometer in 3 hours. ठीक है, एक ट्रेन जो है, ट्रेन ए जो है, दो ट्रेन है यहाँ पे. एक ट्रेन ए है, ठीक है, जो जिसके डिस्टेंस जो है वो 120 किलोमीटर है और वो कितने टाइम ले रही है अपना कवर करने में, उसको उस डिस्टेंस को कवर करने में वो 3 आवर्स टाइम ले रही है. ठीक है, और फिर एक दूसरी ट्रेन है जो जिसकी जो डिस्टेंस वो कवर कर रही है वो है 180 किलोमीटर. ठीक है, 180 किलोमीटर के डिस्टेंस को वो कवर कर रही है इन 4 आवर्स. देन we have to find that which train is traveling faster. दोनों में से कौन सी ट्रेन है जो फास्ट है, दोनों बहुत कौन सी ट्रेन है जो ज्यादा तेज चल रही है. ओके, we have the solution here. Now let us see what is happening here. यहाँ पे हम लोग दोनों केसेस को अलग अलग स्टडी करेंगे. फर्स्ट केस में हम लोग देखेंगे कि ट्रेन की जो डिस्टेंस है दैट इज 120 किलोमीटर एंड द टाइम टेकन बाय ट्रेन ए इज 3 आवर. सो वी विल फाइंड द स्पीड ऑफ अ ट्रेन ए इज 120 बाय 3 आवर, दैट इज अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ स्पीड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन. यहाँ पे हम लोग इस फॉर्मूला को पुट करेंगे. देन डिस्टेंस इज 120 किलोमीटर एंड टाइम टेकन इज 3 आवर्स. देन व्हाट हैपेंड हियर, द स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन वी गेट दैट it is 40 kilometer per hour. Again, for in the second case, we see that distance traveled by train is 180 kilometer and the time taken is 4 hour. Now the speed of train becomes 45 kilometer. इसे हम solve कर लेंगे. 45 kilometer per hour. Thus the speed of train becomes 45 kilometer per hour of train B. So ऐसे तो हम लोग कंपेयर कर सकते हैं ना, कौन सी ट्रेन ज्यादा तेज भाग रही है. तो यहाँ पे जो हमारी ट्रेन बी है दैट इज ट्रेवलिंग फास्टर देन ए. ठीक है, अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं. एक और क्वेश्चन है हमारे पास लास्ट. ओके, द लास्ट क्वेश्चन इज, एक कार, एक मिनट इसको क्लियर कर लेते हैं. A car travels 30 किलोमीटर at uniform speed of, यहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड की भी क्वेश्चन आ गई, 40 किलोमीटर पर आवर, और वो नेक्स्ट 30 किलोमीटर जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड पे कवर करिए 20 किलोमीटर पर आवर. देन वी हैव टू फाइंड द एवरेज स्पीड. वी हैव टू फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ दैट कार. तो अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, केस 1 को स्टडी करेंगे. डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार इज 30 किलोमीटर एंड द स्पीड ऑफ कार इन फर्स्ट केस इज 40 किलोमीटर पर सेकेंड. फर्स्ट केस में क्या है उसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर सेकेंड. सो अगेन वी विल यूज द फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम. ये वाले फॉर्मूला को यूज करके वी विल गेट द टाइम t1. फर्स्ट केस में जो टाइम है उसे मैंने माना t1. तो इसको सपोज किया कि मैं टाइम t1 को 4/3 आवर है. तो सेकेंड केस में भी हम लोग इसी तरह से फाइंड आउट करेंगे. द डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार इन सेकेंड केस इज 30 किलोमीटर एंड द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ दैट कार इज 20 किलोमीटर पर आवर. सो द स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम एंड अगेन वी विल फाइंड द टाइम ऑफ सेकेंड केस. ठीक है, टाइम टेकन बाय दैट कार इन सेकेंड केस, उसमें क्या हो जाएगा 3/2 आवर्स हो जाएगा. अब हम लोग इसको आगे देखते हैं कि आगे हम लोग इसमें क्या करेंगे ऐसा. नेक्स्ट इज द टोटल टाइम टेकन. टोटल टाइम हम लोग क्या करेंगे, t1 प्लस t2. ठीक है, वी विल गेट 9/4 आवर. द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार, फर्स्ट केस में भी 30 किलोमीटर कवर की थी, सेकंड केस में भी 30 किलोमीटर कवर की. सो द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार इज 60 किलोमीटर. सो एवरेज स्पीड, हमारा फॉर्मूला याद आया पीछे जो हम लोगों ने किया था, द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन. द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन इज नोन एज एवरेज स्पीड. तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितना है मेरा 60 किलोमीटर एंड द टोटल टाइम टेकन इज 9/4 आवर. सो the average speed of that car becomes 240/9, that is 26.6 kilometer per hour. So the average speed
of that car for whole journey is 26.6 km per hour. Next, for the complete PDF notes of my channel, please subscribe to my Telegram channel, which is SNW Physics Classes, or you can find the link in the description box. Thank you very much for watching.